अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी टीचर मिस सादिया एंड यू आर वाचिंग आईटी एक्टिविटीज़ चैनल। व्यूअर्स, आज मैं आपको पावर पॉइंट लेक्चर 13 देने जा रही हूं। लेक्चर 12 में आपने जाना था स्लाइड ट्रांजिशन और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हेडर एंड फुटर। तो चले बिना वक्त जाए किए हम बिस्मिल्लाह करते हैं। Viewers, header and footer used in PowerPoint to display information. It gives information about date and time, slide number and so on. It is oftenly used to display company data or copyright information. Viewers, this is our PowerPoint presentation and there are total 5 slides. First slide is my title slide and I want to apply header and footer on it. How do I go for it? Just go to the Insert tab. Then just go to the right side. In a text group, there is a second tab, Header and Footer. When I click on it, dialog box will be open. Dialog box has two tabs, Slide and Notes and Handouts. We will discuss both of these one by one. First, we will discuss Slide. Whereas in slide you can see there are 4 check boxes. The first check box is about date and time. When you click it on it, in update automatically, when you drop it down, it gives the different formats. You can apply any format as per your requirement. After applying the header and footer, the date and time will update automatically. The date and time will not be fixed. Means कि अभी मैं जो date और time apply कर रही हूँ और अगर मैं कल ये presentation open करती हूँ तो कल जिस वक्त मैं ये presentation open करूँगी जो time उस वक्त होगा तो वही time update हो जाएगा, right? But if you want to fix the date and time, you will select this one and you can give the date that you want to give on your header and footer. Now slide number. If you want to give the slide number like 1, 2, 3, तो ये slide number को आप select करेंगे. Footer. If you want to apply any footer on it, आप कोई भी footer देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिख लीजिए. मैं यहाँ लिखती हूँ IT activities. I want to apply this footer on my slides. Then apply to all. Apply to all आप कब करते हैं? जब आप चाहते हैं कि आपके हर स्लाइड के ऊपर header and footer अप्लाई हो जाए तो हम इसको apply to all करेंगे. यहाँ पर आप देखिए this is our first slide, that is the title slide. यहाँ पर date mention है, there is a date and there is a footer and this is a slide number. राइट आप यहाँ पर देखिए दिस इज द सेकेंड स्लाइड. यहाँ पर सेकेंड दिस इज अ सेकेंड स्लाइड सो देयर इज अ 2. यहाँ पर डेट और यहाँ पर फुटर ऑलरेडी अप्लाइड है. यहाँ पर हर स्लाइड में आपको हेडर एंड फुटर नजर आएगा. नाउ स्टूडेंट्स देयर इज एन अनदर ऑप्शन डोंट शो ऑन टाइटल स्लाइड. Viewers, if you don't want to show header and footer command on title slide, you can check this box and right and then apply to all. यहाँ पर देखिए आपकी जो फर्स्ट स्लाइड है that is the title slide, यहाँ पर header and footer अप्लाई नहीं हुआ. बाकी यहाँ पर this is the second one slide, this is the third, fourth, fifth. Viewers, if you want to remove the header and footer on all slides, what will you do? आप क्या करेंगे? आप header and footer पर जाएंगे और यहाँ पर आप अनचेक कर देंगे सबको और अप्लाई टू ऑल कर देंगे. अब आप देखिए हेडर एंड फुटर सब स्लाइड से रिमूव हो चुका है. नाउ स्टूडेंट्स ऑन द राइट साइड देयर इज अ प्रीव्यू ऑफ द हेडर एंड फुटर. व्हेन आई सिलेक्ट डेट एंड टाइम, दैट शोज डेट एंड टाइम विल बी डिस्प्ले on the left side of the slide and slide number will show on the right side of the slide and the footer will show on the center of the slide, right? So there is a preview of the header and footer.
नाउ जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप हेडर एंड फुटर को रिमूव करना चाहते हैं तो आप अनचेक कर देंगे इन बॉक्सेस को, अप्लाई टू ऑल कर देंगे तो आपका हेडर एंड फुटर सब स्लाइड्स में से रिमूव हो जाएगा, राइट। बट स्टूडेंट्स, इफ़ यू वांट टू अप्लाई हेडर एंड फुटर ऑन सम स्पेसिफिक स्लाइड्स, तो आप क्या करेंगे, यू विल सिलेक्ट द स्लाइड जहाँ पर आपने हेडर एंड फुटर को अप्लाई करना है, देन यू विल गो टू द हेडर एंड फुटर, देन डेट एंड टाइम अप्लाई करेंगे, स्लाइड नंबर अप्लाई करेंगे, फुटर अगर आपने देना है कुछ फुटर लगाएंगे, एंड देन अप्लाई, नॉट अप्लाई टू ऑल, बिकॉज आपने एक स्पेसिफिक स्लाइड के ऊपर हेडर एंड फुटर अप्लाई करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम स्लाइड देखते हैं, यहाँ पर हेडर एंड फुटर अप्लाई नहीं हुआ, इस स्लाइड पर भी नहीं हुआ, बट यहाँ पर देखिए हेडर एंड फुटर अप्लाई हो चुका है, क्योंकि मुझे थर्ड स्लाइड के ऊपर ही हेडर एंड फुटर अप्लाई करना था, राइट। तो व्यूअर्स, इस तरह से हम सब स्लाइड्स के ऊपर भी हेडर एंड फुटर अप्लाई कर सकते हैं और कुछ पर्टिकुलर स्लाइड्स के ऊपर भी अप्लाई किया जा सकता है। Now the another very important thing is that you can increase or decrease the size of this text. You can give any color to it, right? यहाँ पर जैसे है मैं इसको सिलेक्ट करूँगी, right? And we'll go to the home, select, I will select it, then I can increase its size, right? If I want to give it color, यहाँ पे color दे दिया, ठीक है। एंड बोल्ड करना है तो बोल्ड कर लेंगे, इटालिक करना है इटालिक कर लेंगे, अंडरलाइन करना है अंडरलाइन कर देंगे, राइट। टेक्स्ट शेडो देना है टेक्स्ट शेडो अप्लाई हो जाएगा। अपने ही एरिया में रहते हुए हम इसकी पोजीशन को भी लेफ्ट, राइट और सेंटर में कर सकते हैं। सेम हम इसके ऊपर बुलेट अप्लाई कर सकते हैं, हम इसके ऊपर नंबरिंग दे सकते हैं, हम इसका फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, राइट। Right, IT activities. If I want to increase its size, I will select it and I will increase its size. We can also change its font style and we can give it to the different color. हम इसको different color दे सकते हैं, right? हम इसको bold कर सकते हैं, right? इसी तरह से हम नंबर का भी साइज इंक्रीज कर लेते हैं, स्लाइड नंबर का, राइट। और इसका कलर अगर आपने चेंज करना है, इसका कलर भी चेंज कर देंगे, इसकी पोजीशन चेंज करनी है तो पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। व्यूअर्स, बाकी फॉर्मेट टैब में अगर आप आएँ तो आप यहाँ पर देखिए हम इसकी शेप फिल भी कर सकते हैं, इसको आउटलाइन भी दे सकते हैं, डिफरेंट इफेक्ट्स भी दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ देयर इज एन सेकेंड टैब, नोट्स एंड हैंडआउट्स। जब मैंने इसको सिलेक्ट किया एंड आई विल सिलेक्ट द डेट एंड टाइम, पेज नंबर, हेडर, यानी कि आपने हेडिंग में अगर कुछ लिखना है, हेडिंग में हम लिख लेते हैं पावर पॉइंट ट्यूटोरियल, एंड फुटर में हम लिख लेते हैं राइट एक्टिविटीज़, राइट। नाउ व्यूअर्स, हम इसका ज़रा प्रीव्यू चेक कर लेते हैं। उसके लिए पहले मुझे इन सबको अनचेक करना पड़ेगा एंड देन हम प्रीव्यूज़ का चेक करते हैं। डेट एंड टाइम, जैसे ही मैंने इसको चेक किया, आप देखिए डेट एंड टाइम के लिए ये प्रोमिनेंट हो गया। इट मीन्स कि डेट एंड टाइम कहाँ पर शो होगी, टॉप मोस्ट राइट साइड, राइट। पेज नंबर कहाँ पर शो होगा, बॉटम राइट साइड पर। हेडर कहाँ शो होगा, टॉप लेफ्ट साइड पर। एंड फुटर कहाँ शो होगा, बॉटम लेफ्ट साइड पर, राइट। व्हेन आई अप्लाई टू ऑल, बट यहाँ पर तो इस तरह का कोई भी हेडर एंड फुटर अप्लाई नहीं हुआ। उसकी वजह ये है कि हमने जो हेडर एंड फुटर अप्लाई किया है वो नोट्स एंड हैंडआउट्स के लिए किया है, तो हमें अपनी स्लाइड्स को नोट्स एंड हैंडआउट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो वी विल गो टू द व्यू, देन वी विल गो टू द नोट्स पेज। नॉर्मल स्लाइड से हमें नोट्स पेज के ऊपर आना पड़ेगा। अब आप देखिए यहाँ पर हेडर एंड फुटर अप्लाई हो चुका है। यहाँ पर देखिए हर स्लाइड के ऊपर हेडर एंड फुटर अप्लाई हो चुका है। But whenever our view is in notes pages, not in a normal slide. So students, by this way you can apply header and footer on your slide.
It was all about today's lecture. Inshallah, in the next lecture, we will discuss another features of PowerPoint. नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.